Hi, today we are going to study about the circulatory system. We all know that heart is an important organ of our body. It pumps blood which is circulated throughout our body by the blood vessels. Now we know that if we have the heart, it keeps on beating and it keeps on the heartbeat tell us that it is pumping the blood. Pumping means it is allowing the blood to go throughout the body. And what are the things that carry this blood? These things are known as blood vessels. Right now, let us see about the circulatory system. The circulatory system is responsible for transporting of oxygen, nutrients, water, and metabolic waste in our body. So when we have the circulatory system, it acts as as if it is carrying certain things from one part of the body to the other. क्या क्या लेके जाता है अपने साथ? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ब्लड अपने साथ लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, that also it is carried by the blood. Then water, then metabolic waste means excretion के जो हमारे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी को अनवांटेड वेस्ट होता है, वो भी ब्लड कैरी करता है, sends it to the kidney and other parts of the body from where it can be thrown out. It is an organ system which circulates blood through the network of blood vessels. The following are some functions of the circulatory system. So if I ask you what are the functions of the circulatory system, then they are the following. Number first is it transports nutrients and oxygen to all parts of the body. Second, it also regulates the body temperature. So if your circulatory system is fine, you'll have a normal body temperature, right? It transports the waste products to the excretory organs for the removal from the body. So whatever extra excretory products are there, whether it is urine, whether it is sweat, it is transported by the blood and goes to different parts of the body from where it can be thrown out. It protects the body from infections and germs. Whenever your body gets infected, it's the blood that in which we have white blood corpuscles or white blood cells which react with them, and they stop these germs to enter into other organs of the body. It also helps the blood clotting and prevents excessive blood loss in case of injury. So whenever you get injury, you must have seen after some time, the blood stops flowing and clotting ho jati hai. So this is because the blood helps in clotting. Now let us see the organs of the circulatory system. So the first major organ is the heart. So it has three major parts. One is the heart, the blood vessels, and the blood. So if I ask you what are the three major constituents or parts of circulatory system, so the three major constituents or the parts of circulatory system are the heart, the blood vessels, and the blood. So the heart, it is the part of the body which you can feel every day. The heartbeat can be felt. Basically, it is a muscular pumping organ because it is made up of muscles. It is located in the chest cavity and it is slightly towards the left side of your chest. Right? It is enclosed in a sac because it is enclosed from all the sides to keep it protected. The adult human heart is the size of the adult human heart is like our fist. जैसे आप एक अपनी मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो अडल्ट का जो हार्ट होता है, जितनी आपकी मुट्ठी होती है उतना हार्ट होता है, ठीक है. और ये जो हार्ट होता है बॉडी में प्रोटेक्ट रहता है हमारा रिब केज से, जो हमारा आगे बोन्स होती हैं रिब्स की, उससे हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है. The heart is built like a double-storied house. So if I ask you which organ is built like a double-storied house, so it is the heart. अब क्या होती हैं इसमें double stories? It has got two chambers, right? One in on the lower side. Here you have the lower side, and the one in the upper side. So जो lower side होते हैं वो left और right ventricles होते हैं, ठीक है? और जो upper side होते हैं वो होते हैं left and right auricles. So दो chambers, दो storied होगी, ventricles and auricles. So this is the organ which is a double-storied organ. Now let us study about the blood vessels, right? So the blood vessels, what do? They carry the blood from one part of the body to another part of the body, right? Vessels, why the word vessel is called? Because vessel means a container that can carry certain things, right? So there are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. कौन-कौन सी हैं? Arteries, veins और capillaries. ये तीनों टाइप के blood vessels जो होते हैं, they are like a network in our body. They are functioning together. They are like the network. So let us see what do they do. Arteries generally carry, purified blood, and veins generally carry the blood which is deoxygenated, and capillaries help in the transfer of this blood from one vessel to the other. So arteries are thick walled, blood vessels की मोटी walls होती हैं, and they carry the blood from the heart to all parts of the body. ठीक है, हार्ट से ब्लड लेके पूरी बॉडी में ले जाती हैं. तो ये कैसा ब्लड ले जाती है? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ठीक है. वेन्स जो होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं. सो अगर मैं बोलूँ थिक वॉल्ड बताओ कौन सा होता है वेसल, तो होता है आर्टरीज. थिन वॉल्ड कौन सी होती है?
veins, right? They carry the blood, and whatever blood they carry the blood back to the heart. So they bring back the impure blood. तो जो भी impure blood होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती ब्लड में, वो ब्लड ये हार्ट में लाती है. हार्ट से प्योर ब्लड आर्टरीज जो है पूरी बॉडी में ले जाती हैं. ठीक है. अब थर्ड फंक्शन क्या है? कैपिलरीज. ये वेरी वेरी थिन वॉल्स होती हैं कैपिलरीज में, बहुत पतली होती है. ठीक है. ये दीज आर वेरी थिन blood vessels, and it acts as a network from, and what does it do? It connects the arteries and the veins near the tissue. तो arteries और veins के बीच में connecting link होता है capillaries की साफ ब्लड को ऑर्गन में देना और खराब ब्लड को ऑर्गन से निकाल के वेन्स में डालना. तो ये इसका कैपिलरीज का काम होता है. ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट, फ्रॉम आर्टरीज टू द वेसल एंड फ्रॉम वेसल टू द वेन्स. ठीक है. Now let us see what is the other part of the blood. So next part is the blood. Circulatory system. Next organ क्या है? Next system क्या है? It is the blood. Let us see what it is. So it says that, let us read more about the arteries and the veins, the difference between them. Arteries, they carry pure blood, right? Which is oxygenated. They carry blood away from the heart. They are thick walled. They are elastic, and they have valves are not there in the arteries, and blood flow under the high pressure. Blood बहुत pressure से flow करता है. और veins opposite side में होती है, वो है deoxygenated blood ले जाती है, except pulmonary vein. Pulmonary vein is the only vein जो कि oxygenated blood लेके जाती है. ठीक है. They carry blood away from into the heart. Wall is very very thin, right? And they have got valves present कि जब blood जाता है तो valve खुल जाता है, उसके बाद जब नहीं जाता तो valve बंद हो जाता है. ठीक है. And blood is flowing under low pressure. धीरे धीरे blood जाता है इसमें veins में. तो ये differences important है. Whenever we study, we generally study the differences. अब आता है what is blood. You always must have seen whenever you have an injury तो उसमें रेड कलर का लिक्विड बाहर आता है, that is the blood, right? अब blood का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, and it also has the blood cells. So the liquid part of the blood is called plasma. What does plasma carry? It carry nutrients and the waste product. So plasma में जो nutrients है और waste product है वो transfer होते हैं कि nutrients body को चले जाते हैं और waste product body में से निकल के plasma में आ जाते हैं. फिर plasma जो है उसको excretory organs को दे देता है फेंकने के लिए बाहर. ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, व्हाइट ब्लड WBC, RBC और प्लेटलेट्स. WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC होता है रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं हमारे पास. लेट अस सी व्हाट इज RBC. RBC का काम क्या होता है? RBC दे आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दे कैरी ऑक्सीजन. ठीक है. तो रेड कलर क्यों होता है RBC का? क्योंकि उसमें पिगमेंट होता है, एक कलर होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और ये क्या कैरी करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन. तो RBC कैरी ऑक्सीजन. व्हाइट BC का क्या काम है? ये व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं. ठीक है. और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्या फंक्शन होता है? दे फाइट विद इन्फेक्शंस एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स. सपोज आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जर्म्स आ गए, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स अगर बहुत अच्छे हैं तो वो आपको इन सारी बीमारियों से बचा लेते हैं. ठीक है. दे प्रोटेक्ट यू. अब प्लेटलेट्स, दे हेल्प in the coloring, they help in the clotting of the blood whenever there is an injury. Thus they prevent the loss of blood from the body. The platelets का काम क्या है? ये एक platelets से याद रखना, they are like plate, they are flat, और ये flat जो है आके assemble हो जाते हैं कहाँ पर? जहां पर आपका blood loss हो जाता है, तो वहां पर एक छोटा सा क्लॉट बना लेते हैं ताकि blood waste ना हो. ठीक है. सो ब्लड में तीन चीजें समझ में आ गई. क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स. और ब्लड सेल्स की तीन चीजें कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की. ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड सबसे पहले क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन कहाँ से ले जाएगा? हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस कहाँ जाता है? लंग्स में. ठीक है. तो लंग्स में हमारा ऑक्सीजन का फंक्शन रहता है. तो लंग्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन लंग्स ने एब्जॉर्ब करी वो ब्लड जो है वहां से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में देता है. तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, राइट. अब बाकी हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है. तो पूरे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है और कहाँ ले जाता है? लंग्स में. दैट इज व्हाई वी से वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल, बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो पूरी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो ये ब्लड जो है लाके लंग्स को दे देता है, लंग्स उन्हें बाहर फेंक देता है. और लंग्स में जो हम हवा इनहेल करते हैं, जो हम अंदर लेते हैं, उसमें से लंग्स ऑक्सीजन खींच लेता है, और वो ऑक्सीजन किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है. और ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है.
नेक्स्ट क्या करता है, इट सप्लाइज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। सपोज हमने कुछ अच्छा खाना खाया तो डाइजेशन हुआ एंड अच्छे न्यूट्रिएंट्स क्रिएट हुए, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी को देता है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। वेस्ट जैसे हमारा स्वेट है, पसीना है, हमारा यूरिन है हमारे पास, और वेस्ट है, तो धीरे धीरे करके ये ब्लड में मिक्स होता है और ये जाता है स्वेट ग्लैंड में जाएगा, पसीना बाहर आ जाएगा, किडनी में जाएगा, यूरिन हो जाएगा बन के बाहर, ठीक है। सो इट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड अगर हमारा देखो, जब हमारे पास वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, ब्लड कम होता है तो हम ठंडे रहते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर की रहती है तो दैट मीन्स हमारे पास खून अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है, और हमारा ब्लड बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, ठीक है। उसके बाद जो WBC होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें इन्फेक्शन से, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं ताकि अगर आपका एक्सेस ब्लड लॉस नहीं हो जाए, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इट इज वेरी सिंपल, देखते हैं कैसे होता है। देखो ये है हमारे पास लंग्स। सो एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स, सॉरी नॉट एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लंग्स। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन लेके जा रहा है लंग्स में से ब्लड, और ये खराब गंदा ब्लड ला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी, हमने एक्सहेल कर दी, बाहर फेंक दी। हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, हमारा लंग्स ने ऑक्सीजन किसको दिया, पल्मोनरी वेन को दिया, और पल्मोनरी वेन ये कैरी करता है रिच ब्लड विच इज गुड इन ऑक्सीजन टू द हार्ट, और फिर हार्ट से ये सब जगह पे जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, पहला काम पढ़ते हैं। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो लंग से इसने लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, हार्ट का, ठीक है। अब हार्ट में आ गया आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड। नाउ द हार्ट पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द अओर्टा। अब यहाँ से कहाँ गए, अयोटा में चला गया, ठीक है। नाउ अओर्टा इज द प्राइमरी आर्टरी टू सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी। अब ये अयोटा जो है इससे पूरी बॉडी को ब्लड जाएगा। सो पल्मोनरी वेन से लंग्स में से ब्लड कहाँ गया, हार्ट के वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर अयोटा से हार्ट में से ब्लड फिर बाहर आया उसमें, और अयोटा से पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन हुआ। फ्रॉम अयोटा द ब्लड मूव्स टू डिफरेंट आर्टरीज एंड सप्लाई प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, the veins carry carbon dioxide rich blood from different parts of the body to vena cava। अब ये वेन्स है सारी की सारी, सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। वीना कावा एक वेन है, उसमें लेके जाती है, ठीक है। वीना कावा क्या है, वीना कावा इज द मेन वेन दैट ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड टू द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। ये गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, कहाँ ले जाती है, राइट ऑरिकल में जाती है। ऑरिकल ऊपर वाला स्टोरी होता है हार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे गंदा ब्लड आ गया, अब क्या होगा इस गंदे ब्लड का, द हार्ट pumps carbon dioxide rich blood to the pulmonary artery that carries it to the lung। अब हार्ट में से जो गंदा ब्लड है किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से गंदा ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग। और लंग में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी जाएगी, लंग्स उसे बाहर फेंकेगा, और फिर से ब्लड नया ऑक्सीजन लेगा, फिर वो ब्लड फिर सर्कुलेशन में आएगा, हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज till you live, okay। So this is the circulatory system ka process. Let us see what is heartbeat and pulse rate. Always when you keep your heart on your chest, you feel the heartbeat, right? This heartbeat is basically the time, it is actually, you can count them, and it is actually when the heart is pumping the blood. So the heart muscles regularly contract and relax to maintain the circulation of the blood। Contract करते हैं तब blood बाहर आता है उससे, और जब रिलैक्स करते हैं तो ब्लड उसके अंदर जाता है, ठीक है। ईच रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसेस अ थ्रोम्बोलिक साउंड व्हिच इज कॉल्ड द हार्ट बीट। अब ये थ्रोम्बोलिक साउंड बनता है धक 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 धक, दिस which is known as lub dub, lub dub, lub dub in English, right? You call this lub dub in English. So this sound which is created is known as the heartbeat. And in an adult human being, the heartbeat is 70 to 75, while in children you can now see it is 90 to 100. Earlier the heartbeat rate was less, because now the children are doing a lot of activities, so the heartbeat rate has now recently been counted as 90 to 80 times per minute in children. It has increased compared to what it was earlier. Heartbeat increases when we do some physical activity such as running, cycling। कभी आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो तो देखते हो heartbeat बहुत fast हो जाती है। With each heartbeat, the blood flows in the arteries under high pressure, and this causes the sound. The pulse rate is the rhythm of the beat which arteries are causing. So rhythm जो होता है pulse rate होता है, ठीक है। और हम किससे पढ़ते हैं इसे, स्टेथो
स्कोप से वी रीड द हार्ट बीट, राइट.